So guys, in last class, we talked about maxima and minima of functions of two variables, right? And we discussed the necessary and sufficient condition for finding maxima and minima of functions of two variables. And we had done some questions of this concept. After that, I think we have done Jacobian as well. Could anybody tell me that we have done Jacobian or not? Adarsh? Adarsh Singh, can you tell Yes, sir. me? Yes, sir. We have done Jacobian? Yes, sir. Okay. So a small topic, Jacobian, in last class we had done. No doubt it was quite simple. Today we will be discussing about the Lagrange's undetermined multiplier method. Actually, this method is for solving a special kind of maxima and minima questions, a special kind of maxima and minima questions when there is an additional condition in the given question. अब तक क्या होता था कि आपको मैक्सिमम मिनिमम ऑफ सिंगल वेरिएबल की बात करें या मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल की बात करें तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दिया जाता था कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन एंड फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन और फाइंड द एक्सट्रीम ऑफ दिस फंक्शन। एक आपको फंक्शन दे दिया जाता था और आपसे बोला जाता था फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। Now in next questions, you will see that you have to find the maxima and minima of the given question with respect to some additional condition given in the question. Or you can say with respect to some additional function in the given question, we have to find the extrema of the given function. That particular additional given condition is called constraints. So just a second. It's visible. Yes, sir. Okay, thank you. So it's the Lagrange's method of undetermined multipliers. Let's read. In many problems, it's a requirement to the extrema of a multivariable function where the variables are connected by some given relation or condition known as constraint. Thus, if a function f of x, y, z of three independent variables where x, y, and z are connected by a known relation g of xy is equal to 0, then the problem of constant extrema consists of finding the extrema u is equal to f of xyz subject to g of xyz is equal to 0. देखिए बोलना चाह रहा है कि अब तक आपने जो मैक्सिमम मिनिमम ऑफ सिंगल वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल्स इनके जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें सिर्फ आपको एक फंक्शन गिवन होता था। अब आपको एक फंक्शन तो वो गिवन होगा जिसका एक्सट्रीमा आपको फाइंड आउट करना होगा, मतलब जिसका मैक्सिमा या मिनिमा आपको फाइंड आउट करना होगा, लेकिन साथ में उतने ही वेरिएबल की एक एडिशनल कंडीशन भी आपको गिवन होगी सब्जेक्ट टू जी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, इसका तो हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है यानी एक्सट्रीमा फाइंड करना है, और एक एडिशनल कंडीशन है जी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, राइट। और ये जो एडिशनल कंडीशन होती है इसे कौन बोला जाता है? कंस्ट्रेंट्स। CONSTRAINT, कंस्ट्रेंट। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं। पहले मैं आपको एक आउटलाइन समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको u ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का एक्सट्रीमा फाइंड करना है।
तो नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड मस्ट बी जीरो. ठीक है. And you can see that f is a function of x, y, z, three variables. You can see that f is a function of three variables x, y, and z. So by the total differential coefficient, df can be written as del f upon del x into dx plus del f upon del y into dy plus del f upon del z into dz. ये टोटल डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट हमने लिख दी. मैंने आपको पहले समझाया था टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट. उसमें फर्स्ट केस ये वाला ही था, when f is a function of x, y, z and x, y, z are connected to each other, then df will be del f upon del x into dx plus del f upon del y into dy plus del f upon del z. नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग del f upon del x, del f upon del y, del f upon del z तीनों जीरो हैं. तो अगर हम इस इक्वेशन में टोटल डिफरेंशियल की इक्वेशन 5.10 में ये पुट कर दें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड जीरो, तो ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा. सो डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू जीरो. इक्वेशन 5.10. अब बात करते हैं कंस्टेंट की या एडिशनल कंडीशन की. एडिशनल कंडीशन भी उतने ही वेरिएबल्स में गिवन है जितने की मेन फंक्शन गिवन है. मतलब g इज ए फंक्शन ऑफ x, y, z. तो टोटल डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग g ऑफ x, y, z इज इक्वल टू जीरो. मतलब इक्वेशन 5.9 का अगर हम dg फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं. dg विल बी del g upon del x into dx plus del g upon del y into dy plus del g upon del g upon del z into dz according to total differential concept. And since g of x, y, z is equal to 0, तो सीधी सी बात है dg will be 0 as well, so this is equal to 0 as well. Right? So df is given why by is- yes. Why we are equating to 0, sir? I didn't get that. Which equation? So last df and dg. dg. देखिए मैंने आपको क्या बताया, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड. इस फंक्शन का हमें एक्सट्रीमा फाइंड करना है यानी मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है. तो जिस भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना होता है उस फंक्शन के पहले नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को जीरो करते हैं. तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड फंक्शन का हमें एक्सट्रीमा फाइंड करना है. तो इसका मतलब द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन ऑफ दिस फंक्शन मस्ट बी जीरो. इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई जीरो, डेल एफ अपॉन डेल जेड जीरो. ये समझ में आया आपको? Yes, sir. अब आप u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड से टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगा के डी एफ फाइंड कर सकते हैं. डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड. ये ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. अब समझ गए. ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड तीनों जीरो है ना. ये इसमें पुट कर दीजिए तो डी एफ का वैल्यू जीरो आएगा नहीं आएगा? इज इट ओके? Yes. ठीक है. अब ये समझ में आया डी जी जीरो कैसे हुआ ये इक्वेशन 5.1 में. ये समझ में आया इक्वेशन 5.11 में डी जी जीरो कैसे हुआ? फिर वो उस क्लियर. देखो इक्वेशन 5.9 क्या है? g ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो. एडिशनल कंडीशन. Yes, तो sir. इसका दोनों तरफ अगर आप डिफरेंशिएशन लोगे तो जीरो होगा नहीं होगा? बिकॉज राइट हैंड साइड में जीरो है, Yes, sir. इसलिए डी जी का वैल्यू जीरो है. अब ठीक है. Yes, sir. अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 5.11 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 5.10 में ऐड करते हैं.
Now multiplying equation 5.11 by lambda and adding to 5.10 we get this. सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, ये देखिए इक्वेशन 5.11 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्डा डेल जी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड हो गया, और इस इक्वेशन को ऐड कर दिया 5.10 में, तो राइट हैंड साइड में तो 0 प्लस 0 ऐड होकर 0 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में dx जब आप ऐड करोगे तो dx तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इन प्लस लैम्डा डी डेल जी अपॉन डेल जेड और बाहर डी जेड इज इक्वल टू 0। ये देखिए इक्वेशन 5.1 del f upon del x plus lambda del g upon del x dx plus del f upon del y plus lambda del g upon del y dy plus del f upon del z plus lambda del g upon del z dz is equal to 5.12 में किसी को कोई डाउट है? ये जो लैम्डा ऐड किया है आपने, दिस लैम्डा इज कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड Lagrange's undetermined multiplier. This lambda is constant and this is called Lagrange's multiplier. इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं Lagrange's undetermined multiplier. ठीक है, ओके. So equation 5.12 is this. Since x, y, z are independent to each other, तो सीधी सी बात है, अगर इक्वेशन 5.120 हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म्स इंडिविजुअली जीरो होगी, मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल वाई इज 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल जेड इज 0. तो हमें मिल गई इक्वेशन 5.13, 5.14 एंड 5.15 इंडिविजुअली जीरो बनेगा. अब हम क्या करेंगे, ये जो चार इक्वेशंस हैं, चार इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? एक तो 5.13, 5.14, 5.15 और एक 5.9 ये वाली इक्वेशन थी. g of x, y, z is equal to 0. This was equation 5.9. Additional condition. So equation 5.9, equation 5.13, equation 5.14, equation 5.15. इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हम चार अननोन्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. चार अननोन कौन से हो गए? x, y, z और लैम्डा. क्योंकि लैम्डा हमने खुद ऐड किया है लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, तो हमें लैम्डा का वैल्यू भी फाइंड करना होगा. तो वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दी फोर अननोन्स x, y, z एंड लैम्डा. और फिर जैसे ही आपको x, y, z लैम्डा मिल जाएगा, तो आप जो मेन क्वेश्चन है एक्सट्रीमा जिसको करना है फंक्शन ऑफ x, y, z, उसमें x, y, z का वैल्यू डाल देंगे, तो फंक्शन की हमें एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी, whether it is maximum or not. So this is Lagrange's multiplier method. अब आपको इतना डेरिवेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है मैं समझाता हूँ आपको. देखिए, आपको ये फंक्शन एक्सट्रीमाइज करना होगा, एक फंक्शन एक्सट्रीमाइज करना होगा, या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा, और उसके साथ एक एडिशनल फंक्शन गिवन होगा. उस एडिशनल फंक्शन को आपको हमेशा इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है. अगर वो इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है, तो राइट साइड में जो भी उसका कांस्टेंट है उसे लेफ्ट साइड में ले आइए और फिर इक्वल टू 0 की फॉर्म में कर दीजिए. तो आपके पास अब दो फंक्शन है. एक फंक्शन वो है जिसे आपको एक्सट्रीमाइज करना है, यानी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और दूसरा एक एडिशनल फंक्शन है जो कि इक्वल टू 0 है. ठीक है,
अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? आप लैम्डा एक लैग्रांजेस मल्टीप्लायर इंट्रोड्यूस करेंगे। लैम्डा कांस्टेंट है और इसे कहते हैं लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, ठीक है। और फिर आप चार इक्वेशन डायरेक्टली बनाएंगे, ये सब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो चार इक्वेशन है ये आप डायरेक्ट बनाएंगे, ये वाली। del f upon del x plus lambda del g upon del x is 0, del f upon del y plus lambda del g upon del y is 0, del f upon del z plus lambda del z upon z del z is 0। और एक ये वाली जो इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी, एडिशनल कंडीशन। ये तीन इक्वेशन हम डायरेक्टली बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज del f upon del x पार्शियल डेरिवेटिव है, f गिवन है, del g upon del x पार्शियल डेरिवेटिव है, g गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन चारों इक्वेशन को जुगाड़ लगा के सॉल्व करके कैसे भी करके आपको x, y, z और लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी है। और जब फिर x, y, z की वैल्यूज आपको फाइंड हो जाएगी तो ये x, y, z आप इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो आपको एक्सट्रीमा मिल जाएगा। क्वेश्चन में अगर मैक्सिमा गिवन होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, क्वेश्चन में अगर मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू। एनी डाउट इन कॉन्सेप्ट बिफोर प्रोसीड टू क्वेश्चन? Anybody? Jitendra, any doubt in concept? Jitendra, are you there? Yes sir, it's on there. Any question? सर वो नहीं सर, वैसे तो कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। आदर्श, एनी डाउट? Sir, I could not follow that how to find value of x, y, z and lambda. नहीं, the concept is clear or not? In Yes, question you will get the things. Yes, sir. Okay. Pragya, Ankita, Yes, sir. anybody has any doubt in Yes, sir. concept? Any doubt, Pragya? No, sir. Okay. Ankita, any doubt? No, sir. Okay. चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। The question is, find the volume of the greatest rectangular parallelepiped inscribed in the ellipsoid whose equation is x square plus a x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1। अच्छा, मुझे कोई बताएगा एलिप्सॉइड क्या होता है? Could anybody tell me what is ellipsoid? ओके, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सर्किल 2 डायमेंशन में होता है और उसका 3 डायमेंशनल वर्जन क्या होता है? स्फीयर होता है। पैराबोला 2 डायमेंशन में होता है, उसका 3 डायमेंशनल वर्जन होता है पैराबोलॉइड। एलिप्स 2 डायमेंशन होता है और उसका 3 डायमेंशनल वर्जन होता है एलिप्सॉइड। हाइपरबोला 2 डायमेंशनल होता है, उसका 3 डायमेंशनल वर्जन होता है हाइपरबोलॉइड। ऐसे ही एलिप्सॉइड क्या हो गया? 3 डायमेंशनल वर्जन ऑफ एलिप्स। रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम होता है, उसका 3 डायमेंशनल वर्जन होता है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। क्यूब होता है
उसका 3 डायमेंशनल वर्जन होता है क्यूबॉइड। वैसे तो क्यूब भी 3 डायमेंशनली होता है, लेकिन अगर एक्सेस वो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हो जाए तो उसे कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 3 डायमेंशनल वर्जन ऑफ एलिप्स है। एलिप्स की 2 डायमेंशनल इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड तो क्यूबॉइड ही होगा ना? नहीं नहीं, एक्चुअली क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड में डिफरेंस है। अगर देखिए, हाँ काइंड ऑफ क्यूबॉइड हो गया, काइंड ऑफ क्यूबॉइड हो गया, लेकिन क्यूबॉइड नहीं होता है। ये होता क्या है कि इस क्वेश्चन के बात ना करें तो पहले तो पैरेललोपाइड समझिए। पैरेललोपाइड का मतलब होता है एक पैरेललोग्राम जो होता है उसका 3 डायमेंशनल वर्जन। मतलब ये हुआ कि 3 डायमेंशन में होगा, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होगा। मतलब जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा, इसके एंगल्स 90 डिग्री पे नहीं होंगे। ये काइंड ऑफ पैरेललोपाइड है जिसके एंगल्स जो होते हैं वो एक्सिस पे 90 डिग्री पे नहीं होते। क्यूबॉइड में क्या होता है कि 90 डिग्री पे एंगल्स होते हैं, एक्सिस पे 90 डिग्री पे एंगल्स ना, सॉरी, एक्सिस पे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। पैरेललोपाइड में 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड में 90 डिग्री पे होते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज ए काइंड ऑफ क्यूबॉइड, is a kind of cuboid. Okay. So the question is, find the volume of the greatest rectangular parallelepiped inscribed in the ellipsoid. Whose equation is this? देखिए यहाँ पे थोड़ी सी और एक बात मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है, मतलब ये है, इसको ऐसे समझिएगा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, ये सेंटर है। और क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने ये कंसिडर किया है कि ये पैरेललोपाइड जिस एलिप्स के अंदर, जिस एलिप्सॉइड के अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्सॉइड की बात कर रहा है, तो जिस एलिप्सॉइड के अंदर है उसका सेंटर और इसका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं फॉर दी इजी कैलकुलेशन। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, बाय सिमेट्री द सेंटर ऑफ द पैरेललोपाइड कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ द एलिप्सॉइड, नेमली द ओरिजिन एंड इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलिप्सॉइड जो है उसके अंदर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बनाया, और जो एलिप्सॉइड का सेंटर है उसी इस तरह से बनाया कि एलिप्सॉइड का सेंटर और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का सेंटर दोनों कोइंसाइड करते हैं। अब आप देख सकते हैं एलिप्स जो होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, एलिप्सॉइड काइंड ऑफ ये होता है, ये एलिप्सॉइड होता है, इसका सेंटर ये रहा, और इसका सेंटर और ये सेंटर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अब आपको पता होगा जब आप एलिप्स बनाते हैं तो ये एक्सिस की ये लेंथ जो होती है वो x होती है, और ये पूरी मिला के 2x होती है। आपको पता है ये y होती है और ये पूरी मिला के 2y होती है। मतलब a होती है 2a होती है, b होती है 2b होती है, c होती है 2c होती है, ऐसे ये z है और ये 2z है। तो अगर इसका सेंटर और ये सेंटर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये x हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 2x हो गया। सिमिलरली ये y हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 2y हो गया, और ये अगर z हो गया तो पूरा 2z हो गया। मतलब ये हुआ कि पैरेललोपाइड की जो लंबाई है वो 2x हो गई, जो ब्रेड्थ है मतलब चौड़ाई है वो 2y हो गई, और जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 2z हो गई। अगर ये कोइंसाइड नहीं करता तो हम कुछ और कैलकुलेशन के हिसाब से लेते हैं, हम x y z कंसिडर करेंगे, लेकिन फॉर इजी एंड बेटर कैलकुलेशन
we are assuming that the center of this rectangular parallelepiped coincides with the center of the ellipsoid. So the 2x, 2y, 2z will be the dimension of this rectangular parallelepiped, length, breadth and height. इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, बाकी क्वेश्चन आगे करते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का वॉल्यूम हो गया v, कैपिटल V अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो 8xyz, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2x इंटू 2y इंटू 2z, 8xyz। और क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार हम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्सॉइड रूल इक्वेशन केस। इसके वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ आएगा फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। तो हमें इसके वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम v को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया जिसे हमें एक्सट्रीमाइज करना है। ठीक है, और एडिशनल कंडीशन क्या गिवन है, एलिप्सॉइड की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज सब्जेक्ट टू, ये हमारा कंस्टेंट हो गया। और कंस्टेंट को मैंने बोला था इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जी हो गया। इसे फाई लिखा है, कोई बात नहीं, हम इसको जी बोल देते हैं, जी ऑफ एक्स वाई जेड। सो द मेन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 8xyz। इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, एंड द एडिशनल कंस्टेंट इज g of x y z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। यहां तक कोई डाउट है? सर जो मतलब जिस जी वाली इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग, सेकंड इक्वेशन मतलब जो सेकंड फंक्शन हम निकाल रहे हैं, यस तो सर वो क्या मतलब वो वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मतलब कि सेम इक्वेशन को हमने लिख दिया ओनली जीरो के इक्वेट करके। बेटा सेकंड फंक्शन तो एडिशनल कंडीशन है, बताया तो था कि आपको, ये देखिए क्वेश्चन में देखो, ये सर वो तो क्लियर, ये एडिशनल कंडीशन है। आपको मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन तो ये है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और किसके वॉल्यूम को, पैरेललोपाइड को वॉल्यूम को, है ना। तो वो तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरी तो सर ये 2x वाला समझ नहीं आया कि 2x मतलब हाँ, डायमेंशन। देखो देखो मैंने आपको, आप इसको इस फिगर को ध्यान से देखो बेटा, इस फिगर को ध्यान से देखो। ये जो है ना, ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का सेंटर है, ठीक है। और यही सेंटर क्या है हमारा, इसका भी है, इसका एलिप्सॉइड है, एलिप्सॉइड। ठीक है। तो अगर ये सेंटर एलिप्सॉइड का भी है और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का सेंटर है, तो एलिप्स याद करो, ये थोड़ी देर के लिए एलिप्स का सेंटर मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, एलिप्स को याद करो, ये वाली लेंथ कितनी होगी बेटा? तो पॉइंटर नहीं दिख रहा आपको? पॉइंटर दिखेगा, ये देखो दिख रहा है, अब दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिखाता हूँ आपको, मैं एलिप्स याद दिलाता हूँ, सब समझ में आएगा। आपको याद है ये a,0 होता है, ये -a,0 होता है, ये 0,b होता है, ये 0,-b होता है, ये सेंटर होता है। सेंटर से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है, ये ए a।
और ये पूरी यहाँ तक कितनी होती है? ये 2a हो जाती तो है। वो हो गई टोटल। तो अब इसे सेंटर एज्यूम करो एलिप्स का, मतलब एलिप्सॉइड का। तो ये लेंथ कितनी हाँ हुई यहाँ? 2a x, और ये पूरी कितनी हुई? 2x। 2x। इसलिए हमने इसको 2x लिया। जी सर क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही आपको 4 इक्वेशन बनानी है। मैं एक बार यहाँ आपको रिवाइज करवाने के लिए लिखता हूँ ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर पाए। देखिए वैसे तो नेक्स्ट उसमें भी है। आपको 4 इक्वेशन कौन कौन से बनानी है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। लैम्डा इंट्रोड्यूस करना है आपको। लैम्डा इज अ लैग्रेंज मल्टीप्लायर। सेकेंड इक्वेशन del f upon del y plus lambda del g upon del y is 0. Third equation del f upon del z plus lambda del z upon del g upon del z is 0. देखिए करते हैं। ये सब कुछ मत करना, ये सब वही डेरिवेशन का पार्ट है। इन सबको करने की आपको जरूरत नहीं है, वो कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, ये इक्वेशन बन के आई है। आप जब कॉपी में कैलकुलेट करेंगे तो यही एक सेकंड बता देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख रहे हैं। ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है, ये वो डेरिवेशन वाला पार्ट है। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आई है, आपको कैलकुलेट कर लेना। सेम आएगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल जी डेल जी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। और ये वाली इक्वेशन है डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, और चौथी इक्वेशन तो मैंने बताई थी मेन इक्वेशन होगी, वो होगी जी ऑफ एक्स वाई जेड इज 0। ये जी ऑफ एक्स वाई 0 जेड इज इक्वल टू। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं नो सर। ये जी ऑफ एक्स वाई जेड इज। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा एक्स वाई और जेड, ये 4 अननोन फाइंड करना है। कुछ भी करके, कैसा भी जुगाड़ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, आसान नहीं है ये काम। जैसे इक्वेशन नंबर 1 जो है इसे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। इक्वेशन नंबर 2 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। इसे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे z से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इक्वेशन 3 को जब आप z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से आप जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू होगा माइनस 8xyz अपॉन 2 लैम्डा। आप जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फाइंड करेंगे इक्वेशन 1 से, आप आराम से कॉपी में कैलकुलेट कीजिएगा, आराम समझ में आ जाएगा। तो आपका वैल्यू बनेगा माइनस 8xyz अपॉन 2 लैम्डा, ये वाली। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 से जब आप वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू भी सेम आएगा। देखो आप वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू आप देखेंगे तो भी यही आएगा, माइनस 8xyz अपॉन 2 लैम्डा। और इक्वेशन 3 से जब आप जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू भी यही आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का वैल्यू भी सेम आएगा, माइनस 8xyz अपॉन 2 लैम्डा। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब इन तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है।
और इन तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम इतना बड़ा ना लिख के इसका वैल्यू, इसे मैं के एज्यूम कर लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। क्योंकि k का वैल्यू एक्चुअली देखा जाए तो -8xyz/2 लैम्डा है, तो मैं इसको k एज्यूम कर रहा हूँ, या लिख भी देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। k इज इक्वल टू -8xyz/2 लैम्डा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ x² a² इज k, y² b² इज k, z² c² इज k। तो इनकी वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 4 में डाल दूँ, इक्वेशन 4 ये भी ध्यान से देखिए, इक्वेशन 4 में डाल दूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि k + k + k इज इक्वल टू 1, मतलब 3k इज इक्वल टू 1। और 3k इज इक्वल टू 1 का मतलब k इज इक्वल टू 1/3, मतलब k का वैल्यू 1/3 आ गया। ओके, अब k का वैल्यू जो 1/3 आया है, इस k के वैल्यू 1/3 को अगर आप यहाँ पुट कर दें, या मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, तो आपको x² इज इक्वल टू 1/3। k का वैल्यू क्या है? 1/3। यस करेक्ट, तो यहाँ पुट कर दीजिए, x² इज 1/3, y² b² इज 1/3, z² c² इज 1/3। तो x² इज 1/3, इसका मतलब x का वैल्यू हो गया a/√3। ऐसे y का वैल्यू हो गया b/√3, ऐसे z का वैल्यू हो गया c/√3। एनी डाउट? पुट कर दिया ना, पीछे देखिए, आपने इसमें पुट किया x² इज इक्वल टू y² b² इज इक्वल टू z² c² इज इक्वल टू k था, k का वैल्यू 1/3। इसका मतलब ये हुआ x² इज 1/3, तो x² इज 1/3, तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया a/√3। सिमिलरली y² b² इज 1/3, तो y का वैल्यू हो गया b/√3। सिमिलरली z² c² इज 1/3, मतलब z का मतलब c/√3। x का वैल्यू भी मिल गया आपको, y का वैल्यू भी मिल गया आपको, z का वैल्यू भी मिल गया आपको। अब आप वॉल्यूम जिसे मैक्सिमाइज करना है उसमें ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। जिस वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना था वो वॉल्यूम था 8xyz, तो 8xyz का वैल्यू क्या रख दीजिए, a/√3 b/√3 c/√3, तो आपका आंसर आ गया 8abc डिवाइडेड बाई 3/√3। This will be the maximum area or maximum volume or greatest volume of the given rectangular paralleloid. ध्यान रखना x, y, z लैम्डा की फॉर्म में नहीं आने चाहिए, क्योंकि लैम्डा हमने खुद इंट्रोड्यूस किया है और वो कांस्टेंट है और वो खुद अननोन है। सो x, y, z must be सर x, y, z must be free from लैम्डा। हाँ बेटा बोलो। सर मतलब हम लैम्डा को बस इक्वेशन बनाने के लिए यूज करेंगे, मतलब वहाँ पे भी उसके हाँ बाद हाँ एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, एक्चुअली लैम्डा का रोल यही है कि हमें फाइनली एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, हमें लैम्डा से मतलब नहीं है। यस एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सर। Sir, how do you know it is maximum value? क्वेश्चन में गिवन है बेटा। हाँ Oh, ये okay. यस नहीं, हु आर यू? Sir, Adarsh. आदर्श, यू हैव ए वैलिड क्वेश्चन कि कैसे जब तक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टेस्ट नहीं होता तब तक हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम है या नहीं है, ये बोलना चाह रहे हो आप? Yes, sir. लेकिन आदर्श मैं आपको बताना चाहूँगा, लेग्रांजेस ने ये जो मेथड बनाया है इसकी खास बात ये है कि आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट दिया हुआ है, या सॉरी मैक्सिमाइज दिया हुआ है,
तो बाय डिफॉल्ट वो मैक्सिमाइज ही बनेगा। अगर यहाँ मिनिमाइज दिया हुआ है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट वो मिनिमाइज ही बनेगा। आपको सेकेंड ऑर्डर वाला टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। Okay, sir. सर हाँ, सर ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब विजुलाइज करने में थोड़ा दिक्कत है, मतलब कि जैसे बेटा हमें ये नहीं पता होता कि सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं या फिर मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ एक्चुअली क्वेश्चन में तो दिया नहीं। एक्चुअली आप बात सही बोल रहे हो। थ्री डायमेंशनल फिगर में बेटा यही प्रॉब्लम होता है। थ्री डायमेंशनल फिगर में अगर क्वेश्चन में डिटेल गिवन ना हो तो उसको इजी बनाने के लिए एज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि थ्री डायमेंशनल फिगर कभी भी विजुअलाइज नहीं होगा। समझ रहे हैं? आप इसको यस 3D में सोचेंगे तो विजुअलाइज नहीं होगा, और कॉपी पेन पे ड्रॉ करेंगे तो ये वैसे भी नहीं बनने वाला, क्योंकि कॉपी जो होती है वो टू डायमेंशन होती है। टू डायमेंशन सर, में थ्री डायमेंशन ड्रॉ नहीं कर सकते। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो हमें ये पक्का पता हो, श्योर श्योर, तभी हम कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैंने आपको बोला, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन को इजी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये एज्यूम किया है कि इसका सेंटर और उसका सेंटर कोइंसाइड करें। अगर दोनों का सेंटर हमने कोइंसाइड नहीं करवाया तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि ये सॉल्व भी ना हो। यस Right? तो थ्री डायमेंशन में थोड़े बहुत एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, ऑप्शन नहीं है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि इस क्वेश्चन को कोई दिमाग लगा के किसी और तरीके से सॉल्व कर सकता है? v इज इक्वल टू 8xyz एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई ध्यान से देख के बताएगा कि इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? जितेंद्र यस सर। बताएंगे कि अगर मान लो मैं लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड आपको नहीं बताता तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते? मान लो अगर मैं आपको दे देता ये क्वेश्चन, फिर कैसे करते हैं? सर इसमें तो मतलब इक्वेशंस कोई। अच्छा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, अभी नहीं करवा रहा हूं मैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से पढ़िए। एक से इस क्वेश्चन अभी करवा नहीं रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। A rectangular box open at the top is to have a volume of 32 cc. Find the dimension of the box that requires the least material for its construction. याद है क्वेश्चन आपने 12th क्लास में किया था? किसी को याद है? Yes, sir, in that maxima minima chapter. Yes, yes. What's your name? Ankita. अंकिता। तो ये क्वेश्चन तो 12th क्लास में किया था, कैसे किया था याद है? Sir, by finding that x is equal to something, then we are putting in that main equation. Yes, 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 yes. You are saying that we have to eliminate one variable. देखिए b इज इक्वल टू 8xyz है, इसे मैक्सिमाइज करना है और आपको ये कंडीशन गिवन है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तीन वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके आप इसमें पुट कर दीजिए। या तो x का वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दीजिए, या y का वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दीजिए, या z का वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दीजिए। तो ये जो मेन फंक्शन होगा जिसे एक्सट्रीमाइज करना है, ये दो वेरिएबल को बन जाएगा। जितेंद्र बनेगा नहीं बनेगा? जितेंद्र दो वेरिएबल का एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया ना। यस सर। अब दो वेरिएबल में बन गया तो दो वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा तो आप लोगों को फाइंड करना आता ही है, लास्ट क्लासेस में समझाया है ना। यस सर। यस सर। वैसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड आया कि कुछ एडिशनल कंडीशंस गिवन होती है, उनको उन क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत होती नहीं है।
Okay, guys, any doubt? Anybody wants to ask? सर आप वो पूछ रहे थे ना, मेरे से पूछ रहे थे कि उसमें मतलब अदर वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो हाँ, तो वो बता अगर तो आप दिया कुछ हिंट मैंने, कर बता तो दिया मैंने अभी आपको। एलिमिनेट एक, कर। हाँ, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके मेन इक्वेशन को दो वेरिएबल में बना लीजिए और फिर दो वेरिएबल के हिसाब से हम इसे सॉल्व कर लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके ओके, एनीबडी हैज एनी डाउट? ओके, अच्छा, 1 बजे आप लोगों की 1 o'clock पे आप लोगों की अंकित सर की क्लास है। अंकित सर आज छुट्टी पे हैं, तो वो क्लास मैं अरेंज करूँगा, मैं लूँगा। तो मैं ग्रुप पे 1 बजे जब शेयर करूँ तो कंफ्यूज मत होना, आई विल टेक द क्लास। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सर यस क्या सर। वो रेमेडियल क्लास है? हाँ, सेक्शन देखिए, मैं रेमेडियल क्लास लेता हूँ दोनों को कंबाइन करके, आपको पता है। लेकिन वो सिर्फ सेक्शन बी की क्लास है, तो वो हम एक डाउट क्लास ले लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको डिस्कस करेंगे या कुछ आगे पढ़ लेंगे, ओके देखिए। ओके सर। ओके, सबको अटेंड करना है व्हाट? सर, एवरीवन हैज टू अटेंड दैट क्लास। हाँ, सेक्शन बी स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर अटेंडेंस जीरो, मार्क जीरो सर अटेंडेंस। तो रेमेडियल का शेड्यूल है। बेटा, रेमेडियल का शेड्यूल है, लेकिन वो सेक्शन बी की क्लास है। और सेक्शन बी, मैं जो, अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरे लिए रेमेडियल क्लास का मतलब है सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी बोथ, है ना? तो अगर मैं सिर्फ सेक्शन बी की क्लास ले रहा हूँ तो वो या तो डाउट क्लास होगी या फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो रेमेडियल क्लास नहीं होगी। ओके सर। Sir, please let it be a doubt class because today is Chhat Puja and ठीक uh, है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आदर्श, नो प्रॉब्लम। please don't mind, sir. या डोंट माइंड, Thank you, sir. नो इशू, नो इशू। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।